The speaker for today, as you would have already known by now, is a very own booklet guy, Mr. Amrit Deshmukh. And he has even he also has an app called the Booklet app where he has discussed some summaries of some of the most popular books out there. And he's also a TEDx speaker, and he has won the Youth Icon Award 2020. And we are so glad to have him with us in our platform. And today he's going to discuss book which is super intriguing and very relevant for today's day in age. Because today, everybody wants to understand what's their purpose. Why are they doing the things they are doing? Why are they working? Why everything is happening? And when so many whys are involved, the title of the book has to be Start with Why, written by Simon Sinek. And we are so happy to have you, sir, here. And I would like to invite Amrit sir now to get started with the session. Please, Oh, thank you so much, Rhea. What a wonderful introduction. I love your enthusiasm. Well, as she rightly said, the name of today's book is Start with Why. Uh, One of my favorite writers, Simon Sinek, he's a TED Talk superstar, and his TED Talk was the first TED Talk of my life. Since then, I fell in love with TED Talks, and I must have watched more than 1,000 TED Talks till now. Yeah, TED Talks is a very big platform where great personalities come and speak for 18 minutes. Uh, so I'm going to discuss some interesting stories from this book. Start with Why. I think the name itself is so explanatory and so simple and clear that start with why. How great leaders inspire everyone to take action. I repeat, how great leaders inspire everyone to take action. The subtitle itself says that leaders are not responsible for the results. I repeat, leaders are not responsible for the results. Leaders are responsible for the people who produce results. राइट, उनका काम है लोगों को डील करना, लोगों को इंस्पायर करना. पहली कहानी which will get the concept of the book very clear. एक बार क्या होता है, एक शू कंपनीज का एग्जीबिशन होता है ऑडिटोरियम में, और उसके टॉक्स वगैरह चालू रहते हैं. तो पूरा खचाखच भरा हुआ है ऑडिटोरियम, कुछ 1,000-2,000 लोग ऑडियंस में बैठे हैं. और शायद कोई ब्रांड स्पार्क्स या ऐसा कोई ब्रांड का सीईओ स्टेज पे आता है और वो अपने जूतों के बारे में बात करता है. और शूज आर हैव सम ग्रेट टेक्नोलॉजी इन द सोल, इट इज लाइट वेट, we are coming up with deep discount offer, and we are going to disrupt the market, we have the best shoes in the market, etc etc. So उसने क्या बात की, what, कि हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. थोड़ी बहुत तालियां बजती है ऑडियंस में और फिर वो चला जाता है. देन कम्स द सीईओ ऑफ नाइकी, फिल नाइट उसका नाम है. नाइकी ब्रांड आपको पता है, टिक मार्क वाला, जस्ट डू इट उनका टैगलाइन है. और फिल नाइट बात करने लगता है एंड ही सेज, ऑल द 2,000 पीपल इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी ऑफ यू रन. कितने लोग हैं ऑडिटोरियम में जो रोज भागते हैं, रनिंग करते हैं. तो कुछ महज 20-25 लोग खड़े हो गए. फिर बोला उसने कि जो खड़े हैं 25 लोग, उनमें से कौन है जो हफ्ते में कम से कम 5 बार, तो 5 दिन भागते हैं, रनिंग करते हैं. तो फिर 25 में से कुछ 5 लोग बैठ गए और 20 लोग खड़े रहे. एंड यू नो व्हाट ही सेज, he says, we are for you, we are for those who, no matter whether it is wet or dry outside, they push your butt out of bed and run at 6 a.m. in the morning. We are standing at the 4th mile to cheer you up. We are the Nike people. और जल्लोश पूरा को पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंजने लगा. एंड द होल मैसेज ऑफ द बुक is hidden in this story. देखो, स्पार्क्स वाले ने क्या बोला, अपने जूते के बारे में बोला. और फिल नाइट, नाइकी के ओनर ने क्या बोला,
अपने जूतों का जिक्र भी नहीं किया. ही स्पोक अबाउट हिज व्हाई. ही स्पोक अबाउट हम क्यों कर रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं. स्पार्क्स वाले ने मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, मतलब मेरा ऑफर क्या है, व्हाट के बारे में बात की, और उसने व्हाई के बारे में बात नहीं की. पर नाइकी वाले ने क्या किया, उसने अपने व्हाई के बारे में बात की, व्हाट के बारे में बोला ही नहीं. दैट्स द होल मैसेज ऑफ द बुक. अभी हुआ क्या होगा जब उसने जूतों के बारे में बात ही नहीं की. जो 20 लोग खड़े हैं वो तो सातवें आसमान पे चले गए. उनको लगा वाओ, आई एम द नाइकी मैन, आई एम द नाइकी वुमेन, राइट. और जो बैठे हैं ना, उनको क्या लगा होगा, अरे यार, आई मिस्ड आउट दैट स्पेशल सर्कल ऑफ पीपल, ऑफ नाइकी पीपल. मे बी आई वुड लाइक टू बिलोंग टू दैट स्पेशल ग्रुप ऑफ नाइकी पीपल. समझा. सो व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि मेरे प्रोडक्ट्स किस किस टाइप के लोगों के लिए बने हुए हैं, मैं उनके लिए ही खड़ा हूं, तो क्या होता है, व्हेन यू नैरो डाउन योर ऑडियंस, तो फिर जो बचे हुए लोग हैं ना, उनको भी दे वुड वांट टू बिलोंग टू दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ नाइकी. बट इट, देखो नाइकी क्या, उनके एड्स देखो आप जाके, 1980s 1990s के एड्स जाके देखो. दे रिवॉर्ड द एथलीट्स, दे रिवॉर्ड माइकल जॉर्डन, दे रिवॉर्ड हुसैन बोल्ट, या दे रिवॉर्ड रॉजर फेडरर. They say that we are for the athlete in you. We are for those world class athlete mentality people. अभी देखो, एक आम तौर पे कोई और ब्रांड रहता तो क्या सोचता, ऐसे जिसको इसके बारे में पता नहीं है, स्टार्टिंग वाई के बारे में, अरे अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स वालों को टारगेट करेंगे तो नॉन स्पोर्ट्समैन पीपल तो हमारे जूते नहीं खरीदेंगे. पर मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने नाइकी के शूज एक बार तो खरीदे हैं लाइफ में, और कितने उस, और जिन्होंने खरीदे हैं उसमें से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कितने लोग हैं, बहुत ही कम रहेंगे. यू गेट माय पॉइंट, कि शुरू में हमको लगता है कि वी आर सैक्रिफाइसिंग अ बिग सेगमेंट ऑफ द मार्केट बाय टारगेटिंग ओनली वन नैरो टाइप ऑफ ऑडियंस. पर ऐसा नहीं है. शुरू में सेल कम होगा, पर लॉन्ग रन में जो लोग हैं, जो वो चाहेंगे कि वो नैरो ग्रुप के मेंबर बने. सेम गोज विद एप्पल, राइट. एप्पल का मार्केट शेयर कितना है पता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, नॉट मोर देन 15% ऑफ द होल ऑफ अमेरिका. बट द रेवेन्यू, पैसा कमा रहे हैं, रिमेनिंग 85% जो मोबाइल मार्केट है ना, उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं एप्पल वाले. बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि हम इन्हीं लोगों के लिए हम हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. क्या अभी उनका वॉइस ढूंढते क्या है. गो बैक 1984 का एक एड था उनका, पहला एड, जब मैकिंटोश कंप्यूटर उन्होंने बनाया था. उन्होंने क्या दिखाया, गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कंप्यूटर दिखाया है नहीं, और बोले कि वी आर द चेंज मेकर्स, वी आर क्रेजी मिसफिट पीपल, वी लव टू चैलेंज द स्टेटस को, वी आर द चेंज मेकर्स. और जो जो दुनिया के इतिहास के चेंज मेकर्स है ना, उनके फोटोज दिखाए उन्होंने. मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है. और देखो अब वैसे ही वो उनके काम में भी दिख जाता है. अब एक मोबाइल कंपनी एक म्यूजिक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती है, ऐसे कैसे हो सकता है. आईट्यून्स उन्होंने लाया है, राइट. पहले के जमाने में अगर आपको कोई गाना पसंद है तो पूरा का पूरा सीडी खरीदना पड़ता था, मतलब वो एक गाने के लिए पूरे 20 गाने खरीदने पड़ते थे. वो पूरा चैलेंज कर दिया स्टेटस को, और उन्होंने क्या लाया, आईट्यून्स लाया, कि आप एक गाने का पैसा दो, सिर्फ आपको एक गाना पसंद है सिर्फ एक गाने का. एंड टुडे आपको पता है सब जगह पे ऐसा हो गया है, बट दे वर द पायोनियर्स. ओके. तो आप कोई भी एप्पल ओनर का देखो, जो मैक, जिसके पास मैकबुक है, जिसके पास आईफोन है, वो कैसे एकदम साफ रखते हैं अपना मैकबुक, एकदम चकाचक. वही आप बाकी के देखो, एचपी या सैमसंग के मोबाइल वो कैसे भी यूज करेंगे, है ना. क्यों, क्योंकि सैमसंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वॉच. वो हमेशा अपने फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा अनब्रेकेबल गोरिल्ला ग्लास है, हम 200 GB का मेमोरी लेके आ रहे हैं, हमारे में ये है, हमारे वो है, फीचर्स के बारे में. आईफोन क्या करता है, दे टॉक अबाउट देयर व्हाई, नॉट द वॉच. और वही पर्पस, वही मैसेज ऑथर देना चाहता है कि उसने एक गोल्डन सर्कल उसको नाम दिया है. गोल्डन सर्कल में सबसे बीचों बीच है व्हाई, उसके बाद आता है हाउ,
उसके बाद आता है व्हाट। सो आपका जो जर्नी है, आपका जो पिच है, जो भी पिच आप कर रहे हो, वो इनसाइड आउट होना चाहिए। स्टार्ट विथ व्हाई, देन हाउ एंड देन व्हाट्स। ये व्हाई हाउ व्हाट होता क्या है? व्हाई इज योर बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ, आपके वैल्यूज। यू स्टैंड फॉर द, यू डोंट स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यू स्टैंड फॉर द हायर पर्पस, उसके ऊपर का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उसने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। पहले ना, पहले के जमाने में बर्फ, जब एकदम मैं बोल रहा हूँ 100 साल पहले, उसको आइस ब्रेकर्स बोलते थे। जो बर्फ का धंधा करते हैं ना, उनको आइस ब्रेकर्स बोलते थे। मतलब जो लेक या पॉन्ड्स में जो बर्फ जम जाता था ना, उसको तोड़ के वो जाके शहरों में बेचते थे। फिर क्या हुआ कि आइस फैक्ट्री का निर्माण हुआ। अभी देखो, दो तरीके के आइस ब्रेकर्स थे। एक ने क्या सोचा कि मैं तो बस आइस ब्रेकर हूं, मतलब ही थॉट दैट ही स्टैंड्स फॉर हिज प्रोडक्ट। पर कुछ आइस ब्रेकर ने क्या सोचा, नो, मैं आइस ब्रेकर नहीं हूं, मैं आइस, लोगों को ठंडक पहुंचाने का काम करता हूं। ही थॉट अबाउट द हायर पर्पस, नॉट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जिन्होंने, जो आइस ब्रेकर से सोचा कि नहीं, मैं ठंडाई के बिजनेस में हूं, मैं ठंडी चीजें देने के बिजनेस में हूं, वो लोग ने आइस फैक्ट्री डाली। काम वही कर रहे हो, आइस बेचना। पर जबकि टेक्नोलॉजी नहीं आए, तो जो पुराने सोच वाले हैं कि नहीं, मैं तो बस आइस तोड़ने वाला हूं, दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। बट पीपल हु थॉट अबाउट देयर व्हाई, कि नहीं, मैं चीजों को ठंडा करने के लिए लोगों को मदद करता हूं, जब ये सोचा, दे सर्वाइव्ड एंड दे अपडेटेड देमसेल्व्स एंड केम आउट विद आइस फैक्ट्रीज। फिर कुछ सालों के बाद रेफ्रिजरेटर का निर्माण हुआ, कि आपको आइस के लिए आइस फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आप आपका खुद का आइस घर पे बना सकते हो। अब आइस फैक्ट्री वालों ने क्या सोचा, वहां पे भी दो तरीके के आइस फैक्ट्री ओनर्स आ गए। कुछ ने सोचा कि हम बर्फ बेचते हैं, तो जिन्होंने सोचा कि हम बर्फ बेचते हैं, वो वहीं पे मर गए, बिकॉज रेफ्रिजरेटर का निर्माण हो गया। और जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम लोगों को बर्फ बनाने में हेल्प करते हैं, हम ठंडाई के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे स्विच टू रेफ्रिजरेशन। पर्सनलाइज रेफ्रिजरेशन आ गया, और फिर घर घर में रेफ्रिजरेटर आ गया। आपको आज की तो बहुत आम बात है, तो कौन सा घर है जिसके जिसके घर में फ्रिज नहीं होता। तो सी हाउ आपके अप्रोच से पूरा तय होता है कि आपका लॉन्ग टर्म जर्नी होता है या बीच में आप बैंकरप्ट हो जाओ। जो आइस ब्रेकर ने सोचा कि मैं आइस ब्रेकर हूं, वो तो खत्म हो गया। फिर जिसने सोचा कि मेरा आइस फैक्ट्री का धंधा है, वो भी खत्म हो गया। पर जिसने सोचा कि नहीं, मैं एक हायर पर्पस के लिए हूँ, कि चीजों को ठंडा करने का मेरा काम है, तो वो आइस ब्रेकर से आइस फैक्ट्री में आ गया, आइस फैक्ट्री से रेफ्रिजरेटर पे आ गया। अभी इसके आगे क्या हो सकता है मुझे पता नहीं। जो लोग सही सोचेंगे वो आगे बढ़ेंगे, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। आई होप यू गॉट। अब जो भी बिजनेस में हो, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पाठशाला, ये कौन से बिजनेस में है, तो यू डोंट सेल द म्यूचुअल फंड्स, you are for the higher purpose. What is that higher purpose? To make people financially free. You are the guidance of financial freedom. जब इसके बारे में, that is your why. And what's क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, फलाना फलाना, ये वो। एंड व्हाट्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। बट सो जब ये बुक पढ़ने के बाद मेरा अप्रोच कितना चेंज हो गया। इनिशियली जब मैंने मिशन शुरू किया था 2015 में, आई वॉज टॉकिंग अबाउट बुकलेट ऐप, बुक समरीज। तो धीरे धीरे ये बुक पढ़ने के बाद समझा कि नो, आई डोंट स्टैंड फॉर बुकलेट ऐप और बुक समरीज, आई स्टैंड फॉर द हायर पर्पस ऑफ रीडिंग हैबिट। तो मेरा भाई क्या बन गया, to cultivate reading habit amongst the youth of India. That's my why. What is my how? How do I do that? By reading books for you and making summaries for you. And what is the what? What is booklet app? So why क्या है? आपका पर्सनल वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीव्स। मेरा बिलीफ क्या है? That if I'm not reading, I'm not changing. If I'm not changing, I am not growing. राइट। तो ये बिलीफ को साकार करने के लिए मैं क्या करता हूं, आई एम ऑन अ मिशन टू कल्टिवेट रीडिंग हैबिट अमंग्स द यूथ ऑफ इंडिया। दैट इज माय हाउ। व्हाट इज माय व्हाट? बुकलेट ऐप, और फिर मेरी किताब। व्हाट्स अनेक हो सकते हैं, व्हाट्स चेंज भी हो सकते हैं, पर व्हाई कभी नहीं बदलेगा। अगर कल कल की तारीख में एंड्रॉइड ये चीज ही बंद हो गई,
खत्म हो गई, तो मैं ऐप लेके क्या करूंगा? मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ कुछ नया करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे मेरा अप्रोच हैज एंटायरली चेंज माय जर्नी। अगर मैं सोचता कि मैं किताबों के बिजनेस में हूं, तो शायद मैं कोई लाइब्रेरी खोलता या किताबों का दुकान डालता। तो मैंने क्या सोचा, नो, आई सेट फॉर रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट मतलब क्या? किताबों के अंदर के आइडियाज को जागृत करना, फिर वैसे वैसे आइडियाज आने लगे। तो देखा, आपका जब वाइब जब एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, तो आपका जर्नी एकदम अलग हो जाता है। आपको पता है, बुकलेट ऐप के अलावा 100 से भी ज्यादा रीडिंग एप्स इंडिया में हैं, 100 से भी ज्यादा। और उनके हार्डली कोई डाउनलोड्स, 1000 2000 डाउनलोड्स, और हमारे साथ 40 लाख लोग जुड़े हुए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि मैं उनसे अच्छे बुक समरीज बनाता हूँ, वो तो व्हाट है, पर वो सब जो 100 के 100 ऐप ओनर्स है ना, रीडिंग ऐप ओनर्स, उनका वाई मिसिंग है। उनको लगता है कि दे स्टैंड फॉर दैट बंच ऑफ कोड अल्गोरिदम ऑफ दैट बुकलेट ऐप, और बुक समरी बनाने का जॉब उन्होंने डिलीगेट कर दिया किसी और को। दे themselves were not passionate about reading books। उनके घर में कुछ बुक किताबें भी नहीं है। मैंने क्या किया, आई स्टक टू माई वाई, आई लिव माई वाई एवरी मिनट। मेरे रगों रगों में है कि बुक्स, आई रीड बुक्स, आई स्मेल बुक्स, आई स्लीप विद बुक्स। मेरे टॉयलेट में भी बुक्स है, मेरे किचन में भी बुक्स है, मेरे शू रैक के ऊपर भी बुक्स है, मेरे बेडरूम में बुक्स होते हैं, सब जगह बुक्स है। और इसके लिए आप लोग मेरी तरफ आकर्षित हो गए। वरना बुकलेट ऐप भी बग्स हो सकते हैं, ऐसा कौन सा भी ऐप नहीं होता है दुनिया में जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, बग्स नहीं है। बट दैट इज द व्हाट में अगर प्रॉब्लम है, बट पीपल बिलीव इन योर व्हाई, दे विल, वो आपके व्हाट के प्रॉब्लम्स को माफ कर देंगे और बोलेंगे, करे वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, बट आई एम विथ यू, आई एम विथ योर मिशन। बट इट, पीपल कम टू यू फॉर व्हाई यू डू, नॉट फॉर व्हाट यू डू। आई रिपीट, ये लाइन उसने 1000 बार रिपीट की है पूरी बुक में। पीपल कम टू यू फॉर व्हाई यू डू, नॉट फॉर व्हाट यू डू। तो आपके व्हाट के बारे में बोलना बंद करो प्लीज, और व्हाई के बारे में बात करो। आपको आपका व्हाई ढूंढना है, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यूजुअली हम व्हाई हमको पता रहता है, हमको बात करने को वो शर्म आती है उसके बारे में। वो कहीं ना कहीं मिशन विजन स्टेटमेंट पड़ा रहता है कैटलॉग के किसी कोने पे, और वो सब भूल जाते हैं। नहीं, रोज उसके बारे में बात करनी है, आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, रोज।